surrounded, or means if we use the words, so we can say the forces, factors, and institutions with which the businessman has to deal with to achieve its objectives. And in a simple language means whatever just surrounds a business. This is business environment. जो भी कुछ उस पर अंदर से और बाहर से असर डालता है वो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। जितने भी फोर्सेस काम कर रही हैं, ऑल द फैक्टर्स एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस आल्सो। इंस्टीट्यूशन, इट मे बी द अदर बिजनेसेस, और यू कैन से द अदर governmental organizations, private organizations, policies, or legal, political affairs, and sometimes technology. So these all are the environments, means नहीं, these all are the factors that create an environment. एक environment बनाते हैं ये सारे फैक्टर मिलके, जिससे बिजनेस के environment एक उसके सराउंडिंग में बनता है और उसके इंटरनल में भी बनता है, दोनों तरफ बनता है। तो as written over here, business has no existence without environment. Yes, because environment has some impacts on the working of business organization. Yes, उसके बिना काम भी नहीं चल सकता। अगर environment ही नहीं होगा तो आपका किसके लिए हो? मार्केट भी तो एक environment क्रिएट करता है। आप मार्केट के लिए काम कर रहे हो, मार्केट ही तो एक environment देता है। Yes or no? So the next number, we can just move it. Several factors like economic, legal, political, social, and technological affects functioning of business around the world. Yes, all these याद कर लो इन्हें ठीक से। Economic, legal, political, social, technological affects functioning of business around the world. So in this way means it generate a environment scanning. Environment scanning means complete awareness and understanding. Yes, complete awareness and understanding of business environment. It is called environment scanning. If a manager is able to understand and to be aware about whatever is happening in the country, in the organization, in the company, and whatever is happening all around the world, या सराउंडिंग्स, उसके बाहर जो भी कुछ हो रहा है, अगर वो उसको जानता है, उसको समझता है, उसको यूज़ कर सकता है अपने लिए, उसके इफ़ेक्ट्स को समझ सकता है, तब आप इसको कहते हैं अ मैनेजर इज़ डूइंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग। कोई भी एक नया मैनेजर अपॉइंट होगा तो वो उसको ज़रूरी है कि वो इन्वायरमेंट स्कैनिंग करे। जब तक वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को नहीं समझेगा तब तक वो काम शायद नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, गलती कर रहा है। उसको आफ्टर अ मंथ ही पता चल जाने वाला है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। Is it okay? So there is a need to scan and examine the forces of environment completely to run business smoothly. Is it done? This is the concept of business environment. Firstly, the existence, by this a business exists. This is environment. Second number, the factors, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं। दूसरा, इन सबको जानना, समझना, परखना और इनके बारे में सभी कुछ जितनी भी अवेयरनेस हो सकती है उसको इकट्ठा करके रखना, रिकॉर्ड्स को देखना, ये है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। होप सो। नाउ as per the words written over here, meaning and definition of business environment. Business environment as such is the total of all external forces which affect the organization and operation of business. Then read it carefully and
Just pause the video and read it carefully. After a minute, we will start it again. Okay, the definition is comfortable for you. Business environment consists of individuals, institutions, and other forces which are outside the control of business but that potentially affect is performance. आप जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स को चेक करेंगे, उनको कंसीडर करेंगे, मेंशन करेंगे कि ये मुझ पर इफ़ेक्टिव है, ये मुझ पर इफ़ेक्टिव नहीं है, उन सभी के बीच में, या फिर ये कह सकते हैं आपका स्कैनिंग एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स को लेकर जितना भी स्कैनिंग आपने किया है कि मुझ पर क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, क्या नहीं करती हैं, उनके बीच में से अगर आप एक बैलेंस बनाकर रख पाते हैं तब आप उसको अपनी परफॉर्मेंस कह सकते हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट तो होगा ही। एक नॉर्मली आप किसी भी चीज़ को धूप में रख दीजिए, किसी भी चीज़ को छाया में रख दीजिए, दोनों पे अलग अलग इफ़ेक्ट होंगे। वो चीज़ें वैसी की वैसी नहीं रह सकती, दोनों पे टेम्परेचर का, एयर का, मॉइस्चर का, हीट का, सबका इफ़ेक्ट होगा। वैसे ही कोई भी एक बिजनेस होता है, उस पर इन सभी के इफ़ेक्ट्स होते हैं, जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और इंटरनल फैक्टर्स भी हैं कि एम्प्लॉयज़ के बीच में हार्मोनी कितनी अच्छी है, आपकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, आप सिंपल ऑर्डर बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, या आप सभी को याद होगा जितने भी प्रिंसिपल्स आपने अभी ऊपर चैप्टर में पढ़े हैं इससे पहले, उसमें कितने प्रिंसिपल्स को यूज़ कर पाता है एक मैनेजर, उसकी टीम यूज़ कर पाती है, ये सभी फैक्टर्स ही हैं, ये सभी वो फोर्सेस हैं जो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाने में ज़रूरी होते हैं या बनाते ही। जैसे एक्सटर्नल का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सटर्नल एक में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए, जिसका डायरेक्टली असर किस पर होगा, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, आपको वो इंक्रीज़ करना होगा। अब वो इंक्रीज़ होगा तो प्राइजेज़ इंक्रीज़ होंगे, प्राइजेज़ अगर चेंज हुए तो वो कंपटीशन को ऑफ़र करेंगे, कंपटीशन होगा तो एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपके सामने आएगी, जिससे कि चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस शुरू हो जाएगा। चेंज मीन्स एक लॉ के चेंज ने इतनी सारी चीज़ों पर आप पर असर डाल दिया। जैसे अभी आप देखिए, या जो रिसेंटली चल रहा है, कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन करना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे इंडिया में। 21 डेज़ का था, उसके बाद फिर उसको एक्सटेंड करना पड़ा और ज़्यादा हो गया, 3 मई तक रहेगा। फ़िलहाल अभी तक यही वो ऑर्डर है। तो इतने दिन का लॉकडाउन हुआ है जिससे सभी कंपनीज मीन्स कंप्लीटली शटडाउन है। 20 कहा गया था, कुछ एक इंडस्ट्रीज़ हैं जो वर्क कर पाएंगी, वो कर रही होंगी, लेकिन बाकी के, या एक जनरली कंपनीज़ के बारे में सोचिए जो अभी तक भी नहीं काम पर वापस आ पाई हैं, तो उन पे पहले तो ये डिसीजन जिसने पूरे पूरे कंट्री को, क्या पूरे वर्ल्ड को ही बना दिया है, कोरोना ने अपना एक तरीके से स्लेव बना के रख दिया है। तो उससे इन्वायरमेंट कितना बड़ा क्रिएट हुआ, उससे कितने सारे फैक्टर्स सामने आएंगे जब ये दोबारा से कंपनीज स्टार्ट होंगी, कितने सारे असर पड़ेंगे कि कितनी इंडस्ट्रीज़ के पास कितना रॉ मटेरियल रखा हुआ था, वो किस रेट का था, और उस जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उस समय रेट्स में क्या वेरिएशन रहेगा, कितना कंपटीशन रहेगा, कौन सी कमोडिटीज़ मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हो पाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस से असर होगा। वो भी ये बहुत पूरे वर्ल्ड के लिए एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना के रख दिया है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बना दिया है, लीगल एनवायरनमेंट भी बन गया है। अगर आप देखिए तो हर तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ अ इनविजिबल, नॉट आई कांट से इट इनविजिबल, इट्स अ विजिबल बट बाय द माइक्रोस्कोप ओनली, अ वायरस। उसने कितना बड़ा असर डाल दिया है। तो इन्वायरमेंट चेंज होगा, बिजनेसेस पे असर पड़ेगा, सभी चीज़ें होंगी। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट,
फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फीचर्स होते क्या क्या हैं, क्या करते हैं वो, उसको काम करने के तरीके क्या हैं, कैसे काम कर पाता है। नंबर 1 इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मीन्स business environment includes all the external forces, so it is aggregative in nature. मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट में सभी सारे एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं, इसलिए एग्रीगेटिव होता है नेचर में, राइट। नेक्स्ट नंबर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस जो कौन से, जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स अफेक्ट बिजनेस डायरेक्टली, राइट। एंड जनरल फोर्सेस जो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल होती हैं और टेक्नोलॉजिकल होती हैं, कई बार वे कंडीशन बन जाती हैं ऐसी भी। तो ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस हैं। ये 1 मार्क्स के लिए इसको नोट कर लीजिए। स्पेसिफिक फोर्सेस मीन्स इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, यू कैन से, बिजनेस को डायरेक्टली करते हैं। और दूसरा नंबर जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस मीन्स सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। सोशल अफेयर्स, मार्केट में कितनी सारी सोसाइटीज़ इंडिया में रहती हैं, कितनी सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, कितने सारे कल्चर रहते हैं, कितने सारे रिचुअल्स फॉलो होते हैं जिनका असर बिजनेस पे पड़ता है। पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, आफ्टर 5 ईयर्स हमें एक नई गवर्नमेंट को फेस करना होता है और उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, उसके प्लान्स होते हैं, उसके जितने भी बिजनेस आइडियाज़ होते हैं उनका इफ़ेक्ट बिजनेस के ऊपर ज़रूर पड़ता है। अब बाकी डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के जो ड्यूरिंग द टेन्योर चलते रहते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया था, जैसे बैंक की रेपो रेट में चेंजेस, आरबीआई के चेंजेस, कुछ लोग इंडिया में ही से ही चले गए, लोन लिया था बैंक से और वो दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए हैं या शिफ्ट करा दिए गए हैं, व्हाटएवर सो। लीगल हैं, कुछ लॉज बन जाते हैं कि ऐसा नहीं होगा या वैसा नहीं होगा, व्हाटएवर। तो और दूसरा टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। वैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है और टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो बिजनेस का पूरा सेटअप चेंज हो जाता है। कुछ टेक्नोलॉजीज़ फेल हो जाती हैं, कंपनीज उनके ऑर्डर्स बंद कर देती हैं और उन्हें देना बंद कर देती हैं, या फिर कुछ नए इन्वेंशंस हो जाते हैं जिनकी वजह से आप पीछे हट जाते हैं, या गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि जैसे पेट्रोलियम से चलने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो डीजल को यूज़ करती हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, वो सोलर पैनल लगा लें अपने यहाँ, डीजल उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ मोटर कार्स में ही डीजल यूज़ होगा, उनके लिए कम पड़ रहा है, वैसे ही ख़त्म होने वाला है। या गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि आप पोल्यूशन नहीं करेंगे, आप टेक्नोलॉजी चेंज कर दो अपनी, कुछ भी करो, हमें नहीं पता, कार्बन बाहर नहीं निकालना है, या रिवर्स में नहीं डालना है, या लैंड वाटर यूज़ नहीं करना है, ख़रीदो पानी, लैंड वाटर फ्री में ले रहे हो आप, उस पर टैक्स देते हो मगर उससे पूरा नहीं बढ़ रहा, आप ग्राउंड वाटर को ख़त्म करते जा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का असर बिजनेस के ऊपर पड़ जाता है और उनके शायद सिर में दर्द हो जाता होगा जहाँ तक है। तो टेक्नोलॉजी की कंडीशन चेंज होती हैं, जिससे इफेक्ट बिजनेस के एनवायरनमेंट पे, मतलब ये भी एक बिजनेस का एनवायरनमेंट बना के खड़ा कर देता है। अब तीसरी बात आती है इंटर रिलेटेड मीन्स जो आपस में एक से दूसरे से, एक कंपनी दूसरे कंपनी से भी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी से हो सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से हो सकती है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से हो सकता है, या फिर सेम बिजनेस करने वाली कंपनीज भी हो सकती हैं जो ऐसा काम करती हों। तो इंटर रिलेटेडनेस है, ओके। और ये फोर्सेस और फैक्टर्स तो इसलिए इंटर रिलेटेड बन जाएंगे। सो नाउ मूव टू द फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट। फीचर्स में पहली चीज़ कैसा होता है फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का, डायनेमिक होता है। अब इसमें कोई कहने सुनने वाली बात शायद बची नहीं है, क्योंकि अगर डायनेमिक ही नहीं होगा तो एनवायरनमेंट ही कैसा होगा। एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है तो नो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स। डायनेमिक होगा, चेंज होता रहेगा लगातार, कीप ऑन चेंजिंग, दिस इज द राइट वे टू से इट, कीप ऑन चेंजिंग।
और नेक्स्ट नंबर अनसर्टेनिटी। अब जब डायनेमिक है तो अनसर्टेन भी होगा, हम कुछ निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ठीक से चलने वाली हैं या कुछ बदल जाएंगी। इट इज़ नॉट सर्टन एनी इन एनी वे, राइट। अब सर्टेनिटी नहीं रही है तभी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, कॉम्प्लेक्शन इंक्रीज हो सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। It can be understood easily in parts, but in totality it is difficult to understand. पूरी तरह से आप नहीं समझ सकते। आप दूर से देख के कह सकते हैं कि 2 to the 4, जैसे इट्स ओके, बचपन से याद हो गया 2 to the 4, मगर उसके अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जाएंगे कि हाउ 2 is to the 4, तो इट इज़ समटाइम्स इट बिकम्स सो कंफ्यूजिव एंड कॉम्प्लेक्स, है नहीं। वो नागार्जुन बता सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट थीसिस दिए थे रिगार्डिंग पाई एंड अदर थिंग्स। चलो वो हम मैथ्स की बात नहीं कर रहे फिलहाल तो, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी, इज इट ओके। सो डायनेमिक नेचर होता है, अनसर्टेनिटी होती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। नेक्स्ट, मूव टू द इम्पॉर्टेंस। क्यों ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट। जब भी क्यों खड़ा हो जाता है, क्यों, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्यों खड़ा हो जाता है तो उसकी इम्पोर्टेंस सामने आती है। या किसी भी चीज़ की का क्यों खड़ा होता है, जब भी वाई, तो जब भी वाई होगा तो उसकी इम्पोर्टेंस ही उसका आंसर होती है, बिकॉज ऑफ दैट। ओके। नंबर 1, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गिव फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इन्वायरमेंट ही जब आप स्कैनिंग करेंगे कि आपके एक्सटर्नल इंटरनल में क्या क्या रिलेशंस हैं, कैसे आपको इफेक्ट कर रहा है, तभी आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हो। यस। और जब अब अपॉर्चुनिटीज़ आपको आइडेंटिफाई हो जाती हैं तभी आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाते हो। सबसे ज़्यादा पहली ज़रूरी चीज़ है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि जिस जो ऑप्शन किसी ने आज तक नहीं सोचे थे वो आपने अप्लाई कर दिए, जो नहीं किया गया था वो अप्लाई कर दिया। जैसे इस गवर्नमेंट ने, अभी किसी ने नहीं सोचा था कि विलेज टू विलेज जो है वो सैनिटाइजेशन होना चाहिए, सैनिटरीज बननी चाहिए, और ये जो इतने भी टॉयलेट्स होते हैं होने चाहिए वो बनने चाहिए। इस गवर्नमेंट ने सोचा, वाह वाह हुई। स्वच्छता अभियान फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, किया होगा सबने, मगर इस गवर्नमेंट ने उसे एप्लीकेबल कर दिया। ये फर्स्ट मूवर है। एनवायरनमेंट को समझो, क्या चाहिए जनता को, ये सुनो। ऐसे ही अगर आप कुछ भी बनाते हैं, आप मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, तो जनता को क्या चाहिए, इजी यूजेबल, यूज़र फ्रेंडली मोबाइल फ़ोन चाहिए। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, बैटरी ठीक चलनी चाहिए, आपका फ़ोन बिक जाएगा। कैमरा की डिमांड हो रही है आजकल, कैमरे पे फ़ोन बिक रहे हैं, वो इन्फिनिटी वाली स्क्रीन्स पे बेचे जा रहे हैं, तो उस पर बिकता है। तो फर्स्ट मूवर बनना है आपको। तो अगर आप फर्स्ट मूवर बनना है तो आपको इन्वायरमेंट की, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और आप उसको स्कैन करते हैं तभी आप बन पाते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई जो अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है वो बिजनेस एनवायरनमेंट ही है। नंबर 2, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गिव वार्निंग सिग्नल्स। अगर अपॉर्चुनिटीज़ को समझ पा रहा है, अगर ये समझ पा रहा है कि आप को क्या क्या अचीव करना चाहिए या कर सकते हो, तो ये थ्रेट्स को भी पकड़ेगा। हमें पता चलेगा कि हम पे कौन सी पॉलिसी असर कर सकती है गवर्नमेंट की, कौन सी गवर्नमेंट आ गई अगर तो हम पे क्या हो सकता है। कोई रूल लॉ या किसी पर डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में, हो सकता है वो पास हो जाता है, तो हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, थ्रेट्स पता चलेंगे हमारे। पब्लिकली सोशल जो इन्वायरमेंट है, हमारा प्रोडक्ट किस लेवल पे है, हम बहुत सारे सर्वेज कराते हैं और उनसे पता चलता रहता है, तो थ्रेट्स पता चलते हैं। इसलिए वो हमें एक तरीके से वार्निंग सिग्नल, एक रेड लाइट जला देता है कि ये हुआ, राइट। सो नेक्स्ट नंबर इज टेप यूजफुल रिसोर्सेज। टैप यूजफुल रिसोर्सेज, यूजफुल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको बताने में, क्योंकि स्कैनिंग होगी तो पता चलेगा रिसोर्सेज ये हमारे पास ये हैं और हम ये हो सकता है ना। हम इलेक्ट्रिसिटी का इतना सारा बिल दे रहे हैं, हम सोलर पैनल लगा सकते थे,
यस, तो रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ हो सकता है, टैप कर सकता है उन्हें। नेक्स्ट, कोप विथ रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस, क्योंकि इन्वायरमेंट का सर्वे हमारे पास है, हमें पता है हमारी इंडस्ट्री के इंटरनल अफेयर्स कैसे हैं, कैसे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज काम करते हैं विद द मशीनरी, और कैसे एक्सटर्नल रिसोर्सेज हम पर असर डाल पाते हैं। तो हम जल्दी से चेंजेस को कॉप करने में, उन्हें पकड़ने में, उन थ्रेट्स को दूर करने में पॉसिबिलिटी ला सकते हैं ड्यू टू दिस। असिस्टेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसीज़ को असिस्ट करने में आप प्लान क्या बनाओगे, प्लान किसके बेस पे बनाओगे, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या करने को है। आप प्लान बनाते हो, आपको ये करना है, मगर किसके बेसिस पर, प्लेटफॉर्म देगा कौन? प्लेटफॉर्म देने वाला ही बिजनेस एनवायरनमेंट है। अरे आपको कौन से कपड़े पहनने हैं ये कौन बताता है? वो आप अलग अलग नाम लेंगे कि ये बताता है, वो बताते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। टेम्परेचर बताता है। कपड़ा पहनने का मतलब कलर नहीं पूछा जा रहा है, टेम्परेचर बताता है कैसा कपड़ा पहनना है। वूलन पहनना है, कॉटन पहनना है, सिल्क पहनना है, या थिनेस्ट पहनना है, हाफ स्लीव पहनना है, फुल स्लीव पहनना है, कलर कौन सा पहनना है ना। जून में रेड कलर की शर्ट पहन के तो नहीं जाना चाहिए किसी को। तो प्लानिंग को असिस्ट करने वाला करना क्या है, बाहर भैया क्या खड़ा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसी के हिसाब से प्लान बनेगा। वरना आप कुछ भी प्लान, अब कि मेरी मर्जी है ये, मैं ये करूँगा, तो आप ऐसा कर पाएंगे? कभी भी नहीं, फेल हो जाएंगे, घर बैठ जाओगे। तो ये मतलब है असिस्टेंट प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन भी तभी होगा जब आप प्लानिंग अच्छे से कर। नेक्स्ट नंबर लास्ट आता है कि इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जब भाई इतनी सारी मेहनत ऊपर से करते हुए आ रहे हो आप, है ना, आपने अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, आपने अपने थ्रेट्स को पता कर लिया, आपने रिसोर्सेज को यूज़फुल बना लिया है, आपने चेंजेस जो हैं वो बहुत रैपिडली कर लिए हैं, आपने अच्छा प्लानिंग बना ली है, अच्छी पॉलिसीज़ बना ली हैं, तो अब भी आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे क्या? या सिर्फ ये सब कुछ कागज़ पे था? अगर ये सब कुछ कागज़ पे था तो बेकार ही है। अगर ये एक्चुअल में हुआ है तो आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। यस। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड्स नंबरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस सक्सेस। ये भी इसी की तारीफ में कही गई बात है। आप 2 मिनट के लिए इसको पॉज। सो दिस द फर्स्ट वन नंबर इज अपॉर्चुनिटीज़। ये लोगोज देख सकते हो, सब ने अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ली हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो पेटीएम बना दिया इंडिया ने, आपको यूज़ ही नहीं करना कैश, कोई ज़रूरत नहीं, बैंक में पड़ा है पैसा, तो आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एंड्रॉयड्स ने मार्केट में फ़ोन्स को देखने और उन्हें समझने और उनको यूज़ करने की तो कहानी बदल के रख दी थी, जिसमें नोकिया और सैमसंग ने सबसे अच्छा बिजनेस किया था। बहुत और भी बहुत सारी कंपनीज थी, लेकिन बस ये दोनों ही कॉम्पीट कर पाए। फिर नोकिया अभी विंडोज़ बनाने में मार्केट से के लीड से हट गया और उसने अपना पैरों पे कुल्हाड़ी सी मार ली थी एक तरीके से। थ्रेड्स को पहचान पाते हैं आप, पॉज करके देख सकते हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है अच्छे से, क्योंकि टाइम भी देखना होता है लगातार, और टाइम को देखने के लिए, है ना, तो इम्पॉर्टेंस जो है इस तरह से काम करती हैं, और इसका एक्सप्लेनेशंस हैं सब। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज़ टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। टाइप कैसे हैं, इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ इसको कि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट काम करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर आप ध्यान से देखो तो जितना भी वो जो हमें इंटरेस्ट हो सकते हैं, हमें इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि हमारा जितना भी क्लाइमेट बाहर से है, इकोनॉमी है देश की, टेक्नोलॉजी,
political affairs, legal affairs, competitions, media, fashion, these all are the external environments. And ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमारा, हार्मनी अच्छी है, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है, हम हेड और सुपर हेड और सब हेड में काम करते हैं, है ना। और हमारा फिज़िकल एसेट बहुत अच्छे से काम कर पाता है, हम उसे स्टोर कर पाते हैं, हमारे पास प्रॉफिट और कैश फ्लो के लिए अच्छे अकाउंट्स मेंटेनर्स हैं और उसको हम करंटली स्टोर कर पाते हैं, और मैनेजमेंट जिसके वजह से सब कुछ अच्छा चल पाता है। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट है जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, या ये कहिए कि जिसके बेसिस पर कंपनी खड़ी होकर तैयार होती है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, राइट। अब नेक्स्ट नंबर आता है इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, इंटरनली जो काम करते हैं। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी थी पीछे, वो सारी आती हैं। नेक्स्ट नंबर, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट पे असर डाल सकता है। ओके, माइक्रो इन्वायरमेंट, होलसेलर्स, डायमेंशंस या कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। डायमेंशंस, ओके, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, right? These are the dimensions of business. Environment, economic environment, first thing is that it consists GDP, economic word तो clear है ना, it consists of GDP, gross domestic product, income at national level and per capita level, profit earning rate, monetary, fiscal policy of government, stock market index, inflation rate, interest rate, etc. Means these all things are responsible for the economic environment of an organization. Is it okay? So easily we can say it is very complex and dynamic in nature, and that keeps on changing with the change in policies and political situations. क्योंकि इकोनॉमी में तो वही होगा जो सरकार चाहेगी। गवर्नमेंट के जितने अच्छे डिसीजंस होंगे वो इकोनॉमी में ले सकती है, और उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है इंडिया जैसी एक कंट्री में, जो एक डेवलपिंग नेशन है और बहुत जल्दी से डेवलप होने वाला है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसमें पर कैपिटा इनकम का खेल पूरी दुनिया में देखा जाता है कि यहाँ पर लोग जीते कैसे हैं। और अब की बार तो कोरोना में भी देखा जा रहा है कि यहाँ की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है लोगों के पास, यहाँ लोग कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर्स को, या फिर वो पॉलिटिकल ऑर्डर ही नहीं मानते, वो मानते हैं कि एक हमारा वेल विशर प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहा है उसको सुनते हैं। बहुत बड़ा असर पड़ता है इन बातों का, वही बातों का असर इकोनॉमी पे भी पड़ता है। तो इकोनॉमी इन्वायरमेंट इस तरह से काम करता है, राइट। 3 एलिमेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पब्लिक, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट सेट, ये इस तरीके से डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं जिन पर कोई भी कंट्री अपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखती है, कोई भी कंपनी अपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखती है और आगे का काम कर पाती है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। अब इस पे केस स्टडीज़ आती हैं।
वहाँ पे पूछा जाता है या किसी कोई भी एक केस स्टडीज़ पर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे बन सकती है कि कंपनी में कोई भी एक नया मैनेजर अपॉइंट हुआ है, उसने देखा कि कंपनी के पास जो कंपनी अपने टर्नओवर के लिए ट्रक्स यूज़ करती है वो जनरली लेट हो जाते हैं, उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनके पेपर्स पूरे नहीं रहते हैं, उनके ड्राइवर्स को तमीज़ नहीं है ड्राइविंग करने की, वो उनका चालान कट जाता है, कभी बिल्टी पूरी नहीं मिलती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कंपनी में एक नया मैनेजर अपॉइंट होते हैं मिस्टर XYZ, और वो क्या करते हैं कि उन सारे हायर ट्रक्स को हटा देते हैं। वो कहते हैं कि नए ट्रक्स मंगा लेते हैं, है ना। 10 ट्रक हमें लगते हैं तो हम 10 ट्रक जो हैं नए ले लेंगे और उसमें से हम 3 को फाइनेंस कराएंगे और 7 के ऊपर लोन उठा लेंगे। उसमें ये भी एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है कि हम 3 जो परचेज वी विल परचेस 3 एंड फॉर द अदर 7 विल बी ऑन लोन। उसमें हम लोन लगा लेंगे और जितना भी हमारे पास पुराना स्टॉक जो मटेरियल है या स्क्रैप मशीनरी रखी हुई है उस सब को तुलवाओ और वो सारा जो है सेल करा दो और उसके पैसे बैंक्स के थ्रू एडजस्ट करा दो। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। असर पड़ता है पॉलिसीज़ का भी, अपने इंटरनल का भी और एक्सटर्नल का भी। इज इट ओके? नेक्स्ट ये पढ़ लीजिए आप एक बार ज़रा लाइंस जो लिखी हैं। रिलेटिव रोल्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, money supply in the economy, balance of the payments and changes in the foreign exchange reserves, agricultural and industrial production trends, growth rate of GDP, GNPs and per capita income. Political environment means जो अफेयर्स गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट क्या चाहती है करना, उसके ऊपर वो किस तरह से ट्रीट करवाना चाहती है, ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट। अब नाउ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मीन्स पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट दैट you can say that affect the government organizational policies. डिमोनेटाइजेशन हो गया मान लो, है ना, या कंट्री ने कह दिया कि जितना भी एक्सपोर्ट है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से बंद कर दिया जाए, है ना। हम इंपोर्ट पे ध्यान नहीं देंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम यहीं बनाएंगे, मेक इन इंडिया होगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज करवा देंगे, यहाँ के मार्केट में सामान मिले ना मिले हम एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ से पैसा कमाएंगे, है ना। अपनी 2 रुपये की चीज़ 20 रुपया में बेचेंगे और वहाँ से जो 22 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये काट के मतलब 20 रुपये मिलेंगे, वहाँ से जब 20 रुपये मिलेंगे उससे हम उसमें से हम जो है 12 रुपये अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करवाएंगे, 12 रुपये अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करवाएंगे, 4 रुपये उसमें से टैक्स के लेंगे और 4 रुपये बचेंगे वो उसमें रिजर्व में रहेंगे। 12 रुपये में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और ऐसा करके हमारा बहुत सारा काम चल जाएगा। पॉलिटिकल अफेयर्स जो एक अच्छी गवर्नमेंट वही जो अपने यहाँ के बिजनेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो पर्सन सेटिस्फाई होगा और सेटिस्फाई होगा तो वो पॉलिटिकल अफेयर्स में ध्यान देगा कि मेरे को इस वाली गवर्नमेंट ने फ़ायदा दिया। इंडिया में ये खेल बहुत चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट नंबर आता है सोशियो कल्चर, सोसाइटी और कल्चर के इन्वॉल्वमेंट्स। अब इतने सारे चीज़ें हैं इंडिया में, इतने सारे प्रेफरेंसेस हैं, इतने सारे टेस्ट हैं, इतने कल्चर हैं, रिचुअल्स हैं, वर्शिपिंग्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, सो मैनी मीन्स वेराइटीज़ एंड वेराइटीज़ इतनी हैं, इतने लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर हैं, तो उन सभी के रिचुअल्स अलग अलग टाइम पे फॉलो होते हैं। कंपनीज़ को पता है कौन से प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है, कैसे होना है, कौन से फेस्टिवल पे कौन सा प्रोडक्ट बिकना है। ये जितनी भी जो जैसा ITC जैसी कंपनीज़ हैं सब कुछ बना रही हैं, इनमें बड़ा भारी ज़रा रोल प्ले होता है
कि कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, क्या किन चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्शन मार्केट की तरफ देना है, किन को रोकना है। सीजन्स इतने सारे होते हैं इंडिया के अंदर, 6 होते हैं, 6 सीज़न होते हैं इंडिया के अंदर, उनके अलग अलग डिमांड्स के अलग अलग रिकमेंडेशंस होते हैं। मेडिसिन्स में देखिए आप, बीमारियां होती हैं समय के अनुसार। अब तो कोरोना चल रहा है पूरी दुनिया में ही है, वो तो कोई बात नहीं है, उसके भी घुटनों पे ला दिया हमने उसे भारत में आते ही। लेकिन अकॉर्डिंग टू सीजन मतलब वर्ल्ड वाइड बीमारियाँ चलती हैं, लेकिन इंडिया में अगर आप इंडिया को देखिए तो यहाँ पे भी ऐसी है। तो एक सोसाइटी कल्चर, इसका एक एनवायरनमेंट नया खड़ा होता है ना। टेम्परेचर का इतना इफेक्ट है, जम्मू कश्मीर में सूट वो गर्म कपड़ा पहना जा रहा है, यूपी में बिल्कुल आपने खाया वो पहन रखा है कॉटन, बिल्कुल एक पतला कुर्ता पहन रखा है उसका। और दूसरा वो अरुणाचल प्रदेश में चले जाए, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मिज़ोरम में बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, वहाँ कुछ और पहना जा रहा है। यहाँ का आदमी जा रहा है हाफ शर्ट में खड़े हो जाते हैं हम जाके वहाँ पे, वो लोग स्वेटर पहने घूम रहे हैं, हमें वो टेम्परेचर फील नहीं होता क्योंकि हम एक ही दिन के लिए गए होते हैं। तो अब वहाँ जाकर स्वेटर खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। कितना कितना चेंज हो गया, एक सोशल कल्चर चेंज हुआ, एक मतलब एक टेम्परेचर की वजह से इन्वायरमेंट चेंज हुआ। कंपनीज को ज़रूरत है कि वो वहाँ पर काम करें, उन पर इफेक्ट पड़ता है कस्टम्स और ट्रेडिशंस का। यस, नेक्स्ट नंबर आता है, ये पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल का मतलब लीगल, इसमें कोई इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं हो सकती। और दो अच्छी सी इमेजेस दबा रखी हैं, एक तरफ रूल है जो जज होते हैं हमारी जुडिशरी सिस्टम में, उनका फोटोग्राफ है, और दूसरी तरफ जो है वो है लेडी ऑफ जस्टिस, आंखों में पट्टी बंधी हुई है। लीगल मतलब लीगल, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशंस पास्ड बाय पार्लियामेंट, कोर्ट, स्टेट, रूल्स और लॉ ऑफ कंट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जो कंट्री में रूल्स और रेगुलेशंस स्टेट बनाती है, कोर्ट दे देती है, या फिर पॉलिटिकली जो क्या कहिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो सारे लीगल इन्वायरमेंट्स होते हैं। अब सिचुएशन सोचिए लीगली कौन कौन से इन्वायरमेंट्स हैं। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन किसका ऑर्डर था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, हेड ऑफ पार्लियामेंट का, राइट। रूल हुआ है, ये एक रूल बना दिया गया कि इट इज़ लॉकडाउन 21 डेज, फर्स्ट 21 आफ्टर 25th March it is being launched by Prime Minister. For 21 days country will be locked down, country will be on lockdown, no transportation, no communication, means postal services, and no organizations, manufacturing, import export, railways, roadways, aeroplanes, all the ways will be locked down. It means legal order, right? In November 2016, 17, 16 or 17, demonetization. Today's at after 12 o'clock, 500 and 1000 rupee note will not be the legal tender. That was sentenced by Mr. Narendra Modi. लीगल एनवायरनमेंट है, जो भी गवर्नमेंट पास करेगी, आप नाम देख सकते हैं, इन्होंने कह दिया तो कह दिया भैया, पत्थर की लकीर है, ऑर्डर है तो है। अब ये सबसे ज़्यादा असर डालता है किसी भी एक फैक्ट्री के ऊपर। गवर्नमेंट ने सुबह उठ के कह दिया पॉलीथीन बंद, वैसे तो काफ़ी दिन बाद कहा था कि पॉलीथीन बंद, बहुत सारे कैंपेन चलाए थे पहले तो, उससे पहले, और किसी दिन भी गवर्नमेंट सुबह को उठ के कुछ कहे कि ये बंद, तो बंद का मतलब बंद, नहीं है तो नहीं है, लीगल इलीगल अनाउंस कर दिया। तो वो लीगल इन्वायरमेंट है जिसका असर बहुत ज़्यादा कंपनी पे पड़ता है। इसके लिए बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, एक्ट्स बनाए हुए हैं, जिनके अकॉर्डेंस पे कंपनी को चलना पड़ता है। उनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप
ख़राब हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ पे केस होता है, उनके कुछ किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी ख़राब मिलती है, वो लीगल इन्वायरमेंट को तोड़ रही होती हैं उस समय, वो सोशल इन्वायरमेंट को तोड़ रही होती हैं उस समय, तो वो उसका एक तरीके से हरासमेंट है। अगर आपने कुछ भी इलीगल किया है तो आप अपने लीगल इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे हो, इसका मतलब है। राइट, पढ़ लिए सारे एक्ट्स जो हैं। गुड। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये सबसे बड़ा बाप खड़ा हुआ है सबका आके, वो सारे इन्वायरमेंट चल रहे थे, अब ये टेक्नोलॉजिकल है। अगर आप कंप्यूटर्स में हैं, अगर आप कंप्यूटर्स कंपनी में, चाहे आप अकाउंटेंट ही हों, चाहे आप मैनेजर हों, उसका प्रोडक्शन इंचार्ज हों, सुपरवाइज़र हों, या उसके सीए हों आप, या कुछ भी हैं आप, हर महीने नई टेक्नोलॉजी हो जाती है, सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कुछ लोग। हर महीने एक नया फैशन हो जाता है, बदलता रहता है सब कुछ। इतने लाइफस्टाइल्स चेंज होते हैं इंडिया में, क्या वर्ल्ड वाइड चेंज होते हैं, जिनका असर बिजनेस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक एग्जांपल है यहाँ पे कि शिफ्ट फ्रॉम प्रिंट बुक टू ई बुक, बुक्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रेलवे स्टेशन, ऑटोमेटिक कार रिप्लेसिंग कार्स विद द गियर्स एक्सेट्रा। ये तो बहुत मोटी सी बात बताइए, इससे अंदर इतनी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। टेस्ट चेंज हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो टेस्ट चेंज करवाने पड़ते हैं कि बेटा मार्केट में नहीं आती है वो टॉफ़ी, उसका तो प्लांट ही बंद हो गया क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा था, उससे उसका बिल नहीं दिया गया, गवर्नमेंट ने उनका लाइसेंस सीज कर दिया, बिजनेस बंद। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, रेट बढ़ गया इलेक्ट्रिसिटी का, डीजल पे रेट बढ़ गया, आपने गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भैया कार्बन पैदा करने वाली फैक्ट्री नहीं लगानी, बंद करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो जनरली चेंज हो जाती हैं। राइट, नए इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, वेज ऑफ कम्युनिकेशन बदल जाता है, और क्या है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंडिया में चेंज होते रहते हैं लगातार। तो ये था इंडिया का इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें इंडिया ने 1991 में 3 चेंजेस सबसे बड़े किए थे, जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की तरह से सामने आए थे। प्राइवेटाइजेशन जो आपने क्लास 10th में भी शायद पढ़ा होगा, ये टॉपिक वहाँ पे आया है, यहाँ पे तो रिपीटेशन ही मानो इसे, लेकिन यहाँ पे एक वाइडर रेंज में है ज़रा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जब कंपनीज़ को ज़्यादा लिबर्टी दी गई थी कि आप कम गवर्नमेंट के साथ काम करिए, उनको भी अथॉरिटी दी गई कि आपको राइट है कि आप बिजनेसेस करें। प्राइवेट्स को ज़्यादा लाइसेंसिंग इजी बना दिया था, मतलब ज़्यादा क्या, मतलब लाइसेंसिंग को इजी बना दिया था। पहले लाइसेंसिंग इतनी इजी नहीं थी इंडिया में 91 से पहले, प्राइवेटाइजेशन में ये करवा दिया गया। ग्लोबलाइजेशन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इम्प्रूवमेंट दिया गया कि इंडिया को भी जोड़ो दुनिया से। आज तक इंडिया क्यों नहीं जुड़ा था? एक कभी एंशिएंट टाइम में था जब सबके प्रभु बन के बैठे थे भारतीय, कि दुनिया में कुछ भी बेचना और ख़रीदना है तो वो भारत ही एक अकेला मार्केट था, ग्रीस से लेकर उधर जापान तक। इधर ग्रीस कोना था, उधर जापान कोना था। उस समय अमेरिका नहीं बना था जब यहाँ का बिजनेस चलता था, सोने की चिड़िया ये वो। तो ग्लोबलाइजेशन फिर से करो, इंडिया को जोड़ो दुनिया के साथ, यहाँ की चीज़ें बाहर बिकने जाएंगी, बाहर की चीज़ें यहाँ पे बिकने आएंगी। आती थी लेकिन उतने लेवल पर नहीं आ रही थी, तो उसको और इम्प्रूव कराया गया जिससे कि एक नया इन्वायरमेंट मिल सके हमें, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बन सकें, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ हो सकें। इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास नहीं है पैसा, बाहर से मंगा लो, कोई बात नहीं। राइट, लिबरलाइजेशन, और ज़्यादा फ्रीडम्स दिए गए, लिबर्टीज़ दी गई, अथॉरिटीज़ दी गई, शेयरिंग स्टार्ट हुई, प्राइवेटाइजेशन उसकी प्राइवेट लिमिटेड्स और लिमिटेड्स कंपनीज़ के साथ, और गवर्नमेंट शेयरिंग्स स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट ने भी जो है इन्वेस्टमेंट्स को ऑफ़र किया और आइए हम में इन्वेस्ट कर दीजिए आप भी। तो इस तरह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंडिया का स्टेबल हो पाया। सो ये चैप्टर था, होप सो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी केस स्टडीज़ पे बात करेंगे, जो अलग अलग केस स्टडीज़ बन पाती हैं उन पर, और हर एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड
केस स्टडीज़ पर हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे। अभी के लिए इसका पूरा मीनिंग आपके लिए तैयार हो गया है। थैंक यू वेरी मच।